ایرانی وفد کا وزیر اعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ان کے وفد کے ساتھ ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ خوشگوار ماحول میں ہونے والی ملاقات میں موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ باہمی دلچسپی کے امور سمیت پاکستان ایران کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر خاص طور پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی اسلام آباد میں وفد کے ہمراہ ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر آصف علی زرداری 5 روزہ دورے پر چین روانہ۔ صدر مملکت یہ دورہ چین کی حکومت کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے صدر مملکت کو الوداع کیا۔ صدر مملکت چین کے صوبوں ہنان اور ہینان کا دورہ کریں گے۔ صدر مملکت پاکستان چین تعلقات بالخصوص اقتصادی و تجارتی تعاون اور چین پاکستان اقتصادی راہداری پر تبادلہ خیال کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون پر مبنی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا عکاس ہے۔ پاکستان نے چین کے تعاون سے مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کر دیا۔ EO3 سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ ایک اور اہم سنگ میل ہے۔ سیٹلائٹ شہری منصوبہ بندی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، فوڈ سیکیورٹی اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے ڈیٹا فراہم کرے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسپارکو کے انجینئرز اور سائنسدانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کو سراہا۔ خلائی شعبے میں دوست ملک چین کی غیر متزلزل حمایت کے معترف ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے جاری سفارتی کوششوں کے حوالے سے ترک وزیر خارجہ کو آگاہ کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے بات چیت اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان کی جانب سے جاری سفارتی کاوشوں پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ گفتگو میں خطے کے امن و استحکام کے فروغ کے لیے رابطوں اور مشاورت کو اجاگر کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسلام آباد میں اہم اجلاس۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان ایران امریکہ مذاکرات میں سہولت کاری جاری رکھے گا۔ غیر مصدقہ ذرائع پاکستان کی پالیسی کی عکاسی نہیں کرتے۔ میڈیا کے آسرائیوں سے گریز کرے، صرف سرکاری بیانات ہی پاکستان کا موقف ہے۔ محمد اسحاق ڈار۔ بولان میں دہشت گرد حملے میں شہید پولیس اہلکار صوبہ خان سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ پولیس حکام اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ وزیر اعظم کا ڈھاڈر میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس اور CTD کو خراج تحسین۔ بلوچستان پولیس اور CTD کے بہادر سپوتوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ I can confirm Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be off to Pakistan again to engage in talks, direct talks intermediated by the Pakistanis, who have been incredible friends and mediators throughout this entire process, with representatives from the Iranian delegation. Look, the Iranians reached out, as the president called on them to do, and asked for this in-person conversation. So the president is dispatching Stephen Jared to go hear what they have to say, and we're hopeful that it will be a productive conversation and hopefully move the ball forward towards a deal.
اسلام آباد میں ایران امریکہ امن مذاکرات، پاکستان بہترین دوست اور ثالث ہے۔ امریکی وفد مذاکرات میں شرکت کے لیے آج پاکستان روانہ ہوگا۔ وفد میں نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر شامل ہیں۔ ایران کی جانب سے پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ ضرورت پڑنے پر پوری مذاکراتی ٹیم پاکستان روانہ ہو جائے گی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ۔ ایران مذاکرات کا خواہاں، ہم تہران کے با اختیار لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، دیکھنا ہے ایران کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو۔ امریکہ ایران کی غیر قانونی تیل کی تجارت کو روکنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کر رہا ہے۔ ایرانی تجارت کو سہارا دینے والے نیٹ ورک پر دباؤ میں اضافہ کریں گے۔ ایران پر معاشی دباؤ بڑھانا آپریشن اکنامک فیوری کا حصہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو۔ Telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. This confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرو اس کی، اور جو ثبوت انڈیا دیتا ہے دے ثبوت۔ انڈیا فیل ہو گیا، میں نہیں کہہ رہا انڈیا کے اپنے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ انڈیا فیل ہو گیا کوئی نیریٹو بنانے میں، کوئی ثبوت دینے میں۔ پاکستان کی مؤثر ابلاغی حکمت عملی کے باعث پہلگام فالس فلیگ پر بھارتی گمراہ کن پروپیگنڈا زمیں بوس۔ بھارتی ڈس انفارمیشن کمپین مکمل طور پر غیر مؤثر، بیانیے کی جنگ میں سچ غالب آیا اور بھارتی گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب ہوا۔ عالمی میڈیا نے بھی حقائق پر مبنی پاکستانی موقف کو تسلیم کیا۔ Pakistan have very strong leadership. Some people won't like when I say that, but you know, it is what it is. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. We have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming, and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy. بہترین حکمت عملی اور کامیاب سفارتکاری، پاکستان کے عالمی وقار میں نمایاں اضافہ۔ سیاسی اور عسکری قیادت کی بصیرت اور مؤثر سفارتکاری کی بدولت پاکستان کو عالمی سطح پر ممتاز مقام حاصل۔ مارکہ حق کی کامیابی نے پاکستان کو سفارتی سطح پر مضبوط جبکہ بھارت کو تنہائی کا شکار کر دیا۔ ایران امریکہ تنازع میں پاکستان کی جانب سے ثالثی کا کردار، مؤثر اور متوازن سفارتکاری کا واضح عکاس۔ 7 مئی کو جب دشمن نے ہمارے معصوم شہریوں پر حملہ کیا تو ہم اپنے فتح 1 ویپن سسٹم کے ساتھ تیار تھے۔ 10 مئی کو ہم نے اپنے فتح 1 ویپن سسٹم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دشمن کے تمام اہداف کو نشانہ بنایا۔ ہمارے اہداف میں سب سے پہلے دشمن کا پٹھان کوٹ ایئر فورس اسٹیشن تھا، جہاں سے انہوں نے ہمارے معصوم شہریوں پر حملہ کیا، اور اس کے بعد مامون ایویشن بیس تھا۔ اس تمام آپریشن کے بعد دشمن نے اپنی تمام ایئر ایکٹیویٹی کو گراؤنڈ کر دیا، اور ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ اپنی ایئر ایسٹس کو فضا میں بلند کر سکے۔ مارکہ حق کے ہیرو کیپٹن محمد حیدر علی نے دشمن کے خلاف زبردست جوابی کارروائی کی۔ فتح 1 میزائل کے موثر فائر نے دشمن کے تمام مذموم عزائم خاک میں ملا دیے۔ فتح 1 میزائلوں نے پٹھان کوٹ ایئر بیس اور مامون ایویشن بیس کو تباہ کر دیا۔ کیپٹن محمد حیدر علی کو مارکہ حق میں مثالی کارکردگی پر ستارے بسالت سے نوازا گیا۔ ان کی یونٹ کی بے مثال کارکردگی نے مارکہ حق میں فتح کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ آج کے دن ہم پاکستانی فوج کو اور خاص طور پر عاصم منیر بھائی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عاصم منیر بھائی، آپ نے جو بھارت کو کرارا جواب دیا تھا اس کی گواہی پوری دنیا نے دی۔ آج 1 سال ہو گیا ہے، لیکن بھارتی گودی میڈیا آج بھی گرے ہوئے رافیل اور تباہ ہیڈ کوارٹرز کو یاد کر کے رو رہا ہے۔
मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग से मुतालिक मोदी सरकार का गुमराहकुन बयानिया वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जाय वकुआ से मकबूजा कश्मीर के शहरी का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के लिए मोहब्बत भरा वीडियो पैगाम। मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। मक्कार दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाकर मुसल्लह फात ने खित्ते में भारतीय बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। 1 साल मुकम्मल होने पर समाजी कारकुनों के तासुरात। हम हैं खिदमत के रास्ते के मुसाफिर, दुख में सहारा, मुश्किल में उम्मीद बन जाते हैं। हमारा हर कदम इंसानियत के नाम। जब दुश्मन अपने गुरूर में बिखरा हुआ बना दिया इबरत का निशान, हम आज भी खड़े हैं। पाकिस्तान का शोबा आईटी में एक और एजाज। एट्रैक्सिस के ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में 16वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान की दर्जाबंदी यूरोपीय यूनियन, मशरक़ वस्ता के मुल्कों और इंडेक्स में शामिल हर अफ्रीकी मुल्क से आगे है। पाकिस्तान औसतन तकरीबन 20% सालाना शरह से तरक्की कर रहा है। ये हमारी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की सलाहियत और मजबूती का वाज़ेह सबूत है। वफाकी वज़ीर शहज़ा फातिमा ख्वाजा। वजीर आला मरियम नवाज की काविशों के समरात। मीट एक्सपोर्ट के लिए पंजाब के चीन की कंपनी समेत 7 इदारों से MOUs पर दस्तखत। चीन की ग्लोबल मीट कंपनी पंजाब में पामको के इश्तराक कार से बॉयलर यूनिट नस्ब करेगी। 1 लाख बकरों और भेड़ों की बरामद के लिए परवरिश की जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास में 10 लाख जानवरों की बरामद समेत अहम फैसले। फैशिस्ट मोदी हुकूमत का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद कश्मीरियों को घरों, जमीनों और दीगर अमलाक से महरूम करने का सिलसिला तेज। काबिज इंतजामिया का मकबूजा कश्मीर को मुआशी तौर पर मफलूकुल हाल बनाना और जब्त शुदा जायदादें गैर कश्मीरी हिंदुओं को देकर इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करने के मजमूम एजेंडे को आगे बढ़ाना है। श्रीनगर नूरबाग में शकील अहमद गनाई और फारूक अहमद मीर की कीमती जायदाद जब्त। आलमी बिरादरी जंगी जराइम पर भारत को जवाबदेह ठहराए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में 2024 के मुकाबले में 2025 में मलेरिया के केसेस में 10% की रिकॉर्ड कमी। गुज़िश्ता साल के दौरान मलेरिया के तकरीबन 18 लाख केसेस रिपोर्ट हुए। मौसमियाती तब्दीली, आलमी सतह पर फंडिंग में $5.4 अरब की कमी और सेहत के शोबे के लिए इमदाद में कटौतियों के बायस हासिल शुदा कामयाबियां खतरे में पड़ सकती हैं। मलेरिया के दोबारा फैलाव के खतरे के बायस फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। मलेरिया के आलमी दिन पर आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट। बर्फबारी की वजह से बंद सियाहती मकाम झील सैफुल मुलूक तक रसाई यकीनी बनाने के लिए काम जारी। सतह समंदर से 10,578 फीट बुलंद बर्फपोश पहाड़ों के दामन में वाक़े झील सयाहों के लिए एक पुरकशिश मकाम है। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकार भारी मशीनरी से दिन रात सड़कों से रुकावटों को हटाने में मसरूफ। नारान से बाबू सर टॉप शाहराह खोलने का काम भी जारी। PSL का फाइनल देखने के लिए शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत। वज़ीर आज़म ने PSL फाइनल में तमाशाइयों को इजाजत दे दी। फ्रेंचाइज मालिकान की दरखास्त पर तमाशाइयों को फाइनल देखने की इजाजत मिली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का फैसले पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। PSL का फाइनल 3 मई को लाहौर में खेला जाएगा। And taken, David Warner. Catch it as the call is into the gap. Expecting as this one goes all the way. Or how slow? लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का 37वां मैच। कराची किंग्स ने कोटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से हरा दिया। किंग्स ने 196 रन का हदफ 19वें ओवर में 1 गंवाकर हासिल किया। कप्तान डेविड वार्नर 48 गेंदों पर 89 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। रेसा हेनरिक्स ने 87 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। PSL के मैचेस PTV स्पोर्ट्स से HD पर बराह रास्त। Oh, and he's hammered that. Oh, take that as well. That's even better.
Yeah, over cover. He has played a fantastic innings. बहुत ही आला शॉट, एक टिपिकल बाबर आजम की शॉट है। और बोल्ड हो गए, इस बार खड़े खड़े खेले और इस बार गेंद स्लिप और विकेट कीपर के दरमियान से गई। लाहौर कलंदर्स के लिए पीएसएल का अहम मैच, पेशावर ज़ल्मी का दिफाई चैंपियन को 200 रन का हदफ। कप्तान बाबर आजम और माइकल ब्रेसवेल की निस्फ सेंचुरियां। बाबर आजम ने 59 रन स्कोर किए, माइकल ब्रेसवेल ने 45 गेंदों पर 83 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में कलंदर्स की बैटिंग जारी। मैच देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और मैड्रिड ओपन टेनिस सालवी नंबर 1 इटली के यानिक सिनर दूसरे मरहले में पहुंच गए। सिनर की फ्रांस के बेंजामिन बॉन्सी के खिलाफ कामयाबी। अमेरिका के बेन शेल्टन को क्रोएशिया के नौजवान खिलाड़ी डीनो के हाथों अपसेट शिकस्त। इटली के लोरेंजो मेसिटी और जमहूरिया चेक के जेरी लहिका की भी अगले मरहले में रसाई। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। फिर वही बात, पहले ही 2 बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी। आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं। ये सब गलत फहमियाँ हैं। हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता। खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुताल्लिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा और वफ़द के साथ मुलाकात करके खुशी हुई। नहायत गर्मजोशी और खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात में मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत पाकिस्तान और ईरान के दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर ख़ास तौर पर बातचीत की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची की इस्लामाबाद में दीगर ऑफिशल्स के हमरा मुलाकात हुई। इस दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक रब्ता किया। नायब वज़ीर आज़म ने अमन के लिए पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते और उससे बाहर अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुकालमे और सिफारतकारी के ज़रिए मुसलसल रवाबित ही वाहिद मुअस्सर रास्ता हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुलाती से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की जानिब से जारी सिफारती काविशों पर तबादला ख्याल किया और मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया।
دونوں رہنماؤں نے اس امر پر زور دیا کہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مسلسل رابطے اور مشاورت ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے خطے کی تازہ ترین پیش رفت سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات میں سہولت فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان اس سلسلے میں اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات کے لیے سہولت کاری کے عمل پر پاکستان کے سرکاری پالیسی بیانات صرف سرکاری ذرائع سے جاری کیے گئے ہیں۔ بے نام پاکستانی حکام یا ذرائع، چاہے وہ پرنٹ یا سوشل میڈیا سے ہوں، پاکستان کے سرکاری موقف کی عکاسی نہیں کرتے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا قیاس آرائیوں پر مبنی رپورٹنگ سے گریز کرے اور صرف سرکاری بیانات پر توجہ دے۔ ناظرین، صدر آصف علی زرداری 5 روزہ دورے پر چین روانہ ہو گئے ہیں۔ صدر مملکت چین کی حکومت کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ اسی دورے کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں شیراز درانی۔ صدر آصف علی زرداری لاہور کے ہوائی اڈے سے چین روانہ ہوئے۔ پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان نے صدر مملکت کو رخصت کیا۔ صدر مملکت اپنے دورے میں چین کے صوبوں ہنان اور ہینان کا دورہ کریں گے۔ صدر مملکت اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں چین کے صوبے ہنان کے شہر چانگشیا کا دورہ کریں گے۔ صدر مملکت 27 اپریل تک صوبہ ہنان میں قیام کے دوران صوبائی قیادت کے ساتھ پاک چین دو طرفہ تعلقات، بالخصوص اقتصادی اور تجارتی تعاون اور چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں صدر مملکت 28 اپریل کو صوبہ ہنان کے شہر ثانیہ پہنچیں گے۔ 1 مئی تک اپنے دورے میں صدر آصف علی زرداری کی صوبہ ہنان کی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی۔ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح تبادلوں کی دیرینہ روایت کا حصہ ہے اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے تناظر میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جو اس سال منائی جا رہی ہے۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون پر مبنی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا عکاس ہے۔ شیراز درانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے کہ پاکستان نے چین کے تعاون سے مقامی طور پر تیار کردہ الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کر دیا ہے۔ اسپارکو نے چین کے تائیوان سیٹلائٹ سینٹر سے الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO3 کے کامیاب لانچنگ کی ہے۔ ISPR کے مطابق EO3 سیٹلائٹ کی لانچ پاکستان کے خود انحصاری اور تکنیکی برتری کے سفر میں اہم سنگ میل ہے۔ EO3 سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والا امیجنگ ڈیٹا شہری منصوبہ بندی، آفات سے نمٹنے، غذائی تحفظ اور ماحولیاتی تحفظ میں انقلاب لانے میں مدد دے گا۔ کامیاب لانچ کو ایک مربوط ارتھ آبزرویشن سسٹم کی بنیاد قرار دیا جا رہا ہے، جو مختلف شعبوں میں قومی ترجیحات کے حصول میں معاون ثابت ہوگا اور پائیدار سماجی اور معاشی ترقی میں کردار ادا کرے گا۔ اس تاریخی موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسپارکو کے انجینئرز اور سائنسدانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم نے خلائی شعبے میں چین کی غیر متزلزل حمایت کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان کے علاقے ڈھاڈر میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس اور CTD کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان پولیس اور CTD کے بہادر سپوتوں نے جواں مردی کی اعلیٰ مثال قائم کی اور جوابی کارروائی کر کے متعدد دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا۔ وزیر اعظم نے دہشت گردوں کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے اہلکار کو خراج عقیدت پیش کیا اور لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ Signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. This confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرو اس کی، اور جو ثبوت انڈیا دیتا ہے دے ثبوت۔ انڈیا فیل ہو گیا، میں نہیں کہہ رہا انڈیا کے اپنے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ انڈیا فیل ہو گیا کوئی نیریٹو بنانے میں، کوئی ثبوت دینے میں۔ پہلگام فال فلیگ واقعہ، ہندوستانی پولیس اسٹیشن میں دائر FIR سے مودی حکومت کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की FIR ने हमले को मशकूक बना दिया। So the incident, as per the FIR, was from 1350 and it is 1420 hours. So how it was humanly possible that within 10 minutes मार्का हक में पाकिस्तान ने न सिर्फ रिवायती जंग में भारत को जमीनी, फिजाई और समंदरी महाजों पर नाकों चने चुभवाए, बल्कि इलाकाई और आलमी सतह पर अक़वाम आलम की बरादरी में भी पाकिस्तान के कद में नुमाया इजाफा हुआ, जबकि भारत को सिफारती तन्हाई का सामना करना पड़ा। इसी पर देखते हैं अरसलान असद की ये रिपोर्ट। अफवाज पाकिस्तान मार्के हक में अजीम फतह के बाद पाकिस्तान न सिर्फ दिफाई मैदान बल्कि सफारती महाज पर भी एक मजबूत और बावकार कुव्वत बनकर उभरा है। बेहतरीन हिकमत अमली, मौसर सफारतकारी और सियासी व अस्करी क़यादत की गैर मामूली बसीरत ने पाकिस्तान का आलमी वकार नुमाया तौर पर बुलंद कर दिया। जंगी मैदान में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान ने मौसर सफारतकारी के जरिए आलमी सतह पर अपना असूली मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में उजागर किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान सफारती सतह पर मजबूत जबकि भारत आलमी तन्हाई का शिकार होते दिखाई दिया, जिसका बरमिला इकरार खुद भारतीय मीडिया एंकर्स और सियासतदानों ने भी किया। हिंदुस्तान जो है इस समय उस हालात में नहीं है कि वो लड़ाई कर सके, और उस हालात में भी नहीं है जैसे आपने जिक्र किया सर्जिकल स्ट्राइक जो थी दोनों बालाकोट की और जो 2016 की थी, वो लड़ाई नहीं थी, वो सिर्फ एक दिखावा था लड़ाई का। अब आप वो भी नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी तरफ से बिल्कुल साफ हो रहा है कि वो हाई अलर्ट पे है। सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान लड़ाई कर सकता है, तो उस पे जवाब है मेरा नहीं। पाकिस्तानी क़यादत ने अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की, रूस और ईरान समेत अहम आलमी ताकतों की क़यादत से मुसलसल राब्ते और मुलाकातें करके मुतवाज़न खारजा पॉलिसी का बेहतरीन अमली मुजाहरा किया, जिसकी एक झलक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा भी है। मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी और फाल व मौसर खारजा हिकमत अमली के जरिए पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में अपने असर व रसूख और ताकत का लोहा मनवा लिया। यही वजह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुतअद्दिद मौके पर पाकिस्तानी क़यादत को सराहते हुए इसे इंतहाई मजबूत, गैर मामूली और शानदार करार दिया। Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan. Your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. Pakistan have very strong leadership. Some people won't like when I say that, but you know, it is what it is. We have a great leader coming, the Prime Minister of Pakistan coming, and the Field Marshal, Pakistan Field Marshal is a very great guy. अमेरिका समेत दुनिया भर ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों, हिकमत अमली और अनथक कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया, जबकि आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान को नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. Through a phenomenal partnership with अमेरिका तनाज़े में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को मुअस्सर मुतवाज़िन सफारतकारी की वाज़ेह मिसाल करार दिया जा रहा है। आलमी माहिरीन के मुताबिक सियासी व अस्करी क़यादत की फ़ाल सफारतकारी और मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी ने पाकिस्तान को आलमी अमन के ज़ामन के तौर पर उभारा है। मार्के हक में अमली मैदान की कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने सफारती महाज पर भी भारत को आलमी सतह पर बहुत पीछे छोड़ते हुए तनहा कर दिया। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, भारत 70 की दहाई से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की भयानक और तवील तारीख रखता है। अब की बार पहलगाम के स्याह हिंदुत्वा नजरिए के तख्ता मश्क बने दुनिया को धोखा देने की मजमूम भारतीय कोशिश नाकाम हुई और भारतीय सियासतदानों ने यह तस्लीम किया कि पहलगाम ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए किया गया। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद फैसल राव अपनी रिपोर्ट में। पहलगाम ड्रामे ने भारत को आलमी सतह पर रुसवा किया, जबकि खुद भारत के अंदर भी मोदी सरकार की नाअहली और सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात उठे। अजे तक कोई सबूत नहीं गवर्नमेंट दे कोले कि जो पहलगाम दे विच होया है ये पाकिस्तान ने कराया हैगा। ਤੁਹਾਡੀਆਂ एजेंसीज हैगियां, खुफिया हैगियां, रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इन्हां नूं क्यों नहीं पता लग्या कि ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
भारतीय जरीदे दी वायर ने भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान पर बगैर किसी सबूत इल्जामात पर सवालात उठा दिए। रुकने पार्लियामेंट चरणजीत सिंह ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग को मशकूक करार देते हुए अवाम को हकायक से आगाह करने का मुतालबा किया। देश के लोगों की जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। कांग्रेस रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम ड्रामे को भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी करार देते हुए कहा कि मोदी ने पहलगाम हमले से 3 रोज कबल जम्मू और कश्मीर में मुमकिन हमले की खुफिया इतला मिलने पर अपना दौरा मंसूख कर दिया था। हमले के 3 दिन पहले ही वहाँ इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया था। आम आदमी पार्टी के रहनुमा सौरभ भारद्वाज और साबिक भारतीय सफारतकार केपी फाबैन ने भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर सवालात उठाए। भाई इतनी सारी चेक पोस्ट हैं, चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस, रॉ, आईबी। They should come out with a white paper which explains what happened in Pahalgam. आतंकवाद को शब्द को इस्तेमाल करते हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन आतंकवादी को पकड़ने पे उनका कोई जोर नहीं है। लोगों को आतंकियों ने मारा, उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला, तो इनको तो जान, किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। What are they threatening? That they will finish off all the terrorists. What terrorists have they finished? Have the Pahalgam terrorists been finished? What all these chest thumping and saying we will do. Yeah, no one's impressed by all this nonsense. If this government has any sense, they'll make sure. What are they doing to this country? Shame on them. Pahalgam, it is already 1 year. They are unable to find out who is the real culprit. पहलगाम फॉल्स फ्लैग के 1 साल बाद भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश ना कर सका। मोहम्मद फैसल राव, पीटीवी न्यूज। मार्का हक की तारीखी कामयाबी को 1 साल मुकम्मल हुआ। तारीखी कामयाबी ने कौम को ये सबक दिया कि अब जंगें ज़मीन, पानी और फिजा ही में नहीं बल्कि जहनों और जज्बात में भी लड़ी जाती हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। मार्का हक ने कौम को ये बताया कि कॉग्निटिव वॉरफेयर में टारगेट इंसान नहीं बल्कि जहन और इंसानी जज्बात होते हैं। हाइब्रिड जंग में दुश्मन के बड़े हथियार इंतशार और मायूसी फैलाना है। मकसद सादा है कि लोगों के इतिमाद को तोड़ा जाए और सच को प्रोपेगेंडे और अफवाहों के मलबे तले दफन कर दिया जाए। दुश्मन ने मार्का हक के मौके पर एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। उसने अवाम के जहनों में झूठ डालने की कोशिश की। सबसे पहले दुश्मन ने अपने मुल्क में फ्लैग फॉल्स ऑपरेशन करवाया और उसके बाद पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की अवाम ने अपनी अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया, दुश्मन के झूठे बयानिए को मुस्तरद किया, दुश्मन की जानिब से किए गए प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया, मैं इस पर पाकिस्तान की अवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मार्का हक ने ये भी समझाया कि हाइब्रिड वॉरफेयर में अपने बयानिए पर मजबूती से कायम रहना सबसे बड़ा दिफा है। मार्का हक ये बताता है कि ये वक्त कॉग्निटिव वॉर का है, ये वक्त जहनों की जंग का है। और उस बुज़दिलाना कार्रवाई का हम जवाब देंगे और पाकिस्तानी अवाम हमेशा अपने अफवाज के साथ खड़ी है। हर उस दुश्मन के लिए मैसेज है मार्का हक कि जब भी पाकिस्तान पे कोई मैरी नज़र रखेगा तो उसको उसका ऐसी तरह इससे भी ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाइब्रिड जंगें अब स्क्रीनों पर लड़ी जाएंगी। हर पाकिस्तानी इस जंग का सिपाही है। मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल हुआ। आज पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली नई जिहत इख्तियार कर चुकी है। दुश्मन के जहरीले प्रोपेगेंडे का जवाब जवाबी हमले से नहीं दुरुस्त बयानिए से दिया जा रहा है। वकार अहमद, पीटीवी न्यूज़, कोयटा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान की मौसर इब्लागी हिकमत अमली ने भारतीय साजिश और झूठ को न सिर्फ हकायक और शवाहिद से बेनकाब किया बल्कि इसे मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया है। शवाहिद से वाज़े है कि हर फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया फरसूदा स्क्रिप्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम तेज कर देता है। पाकिस्तान की जानिब से पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के मुतालबे से भारतीय मौक़िफ़ और नापाक अज़ाइम को शदीद नुकसान पहुंचा। आलमी मीडिया ने भी हकायक पर मबनी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के बयानिए की कामयाबी की बुनियाद हकायक और सच्चाई पर मबनी मौक़िफ़ था।
और यहाँ जिक्र करेंगे कौम के एक बहादुर सपूत का, मार्का हक के हीरो कैप्टन मोहम्मद हैदर अली। सितारे बसालत की बेमिसाल कारकर्दगी की अजीम दास्तान। मार्का हक के दौरान कैप्टन मोहम्मद हैदर अली ने मिसाइल लॉन्चिंग ऑफिसर की ड्यूटी बखूबी निभाई। फतह 1 मिसाइल के मुअस्सर फायर ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। दुश्मन के अहदाफ में पठानकोट एयरबेस और मामून एविएशन बेस शामिल थे। सात मई को जब दुश्मन ने हमारे मासूम शहरियों पर हमला किया तो हम अपने फतेह 1 वेपन सिस्टम के साथ तैयार थे। 10 मई को हमने अपने फतेह 1 वेपन सिस्टम के साथ अल्लाह ताला के हुक्म से दुश्मन के तमाम अहदाफ को निशाना बनाया। हमारे अहदाफ में सबसे पहले दुश्मन का पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन था, जहाँ से उन्होंने हमारे मासूम शहरियों पर हमला किया, और उसके बाद मामून एविएशन बेस था। इस तमाम ऑपरेशन के बाद दुश्मन ने अपनी तमाम एयर एक्टिविटी को ग्राउंड कर दिया और उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा अपनी एयर एसेट्स को फ़ज़ा में बुलंद कर सकें। हम अपने मुल्क की बका और आवाम की सलामती के लिए हर किस्म की कुर्बानियाँ देने के लिए हमेशा से तैयार हैं। मार्का हक के 1 साल बाद मकबूजा कश्मीर के शहरी का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के लिए मोहब्बत भरा पैगाम। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग से मुतालिक मोदी सरकार का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दिया। यकीनन इस जगह को आप पहचान गए होंगे, ये पहलगाम है। आप इस जगह को देखें, कितनी खूबसूरत जगह है। और इस जगह की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से मोदी की जिल्लत शुरू हुई थी और यहीं से भारत का गरूर टूटा था। इन हिंदू काफिरों ने सबसे पहले इस जगह पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया और उस ऑपरेशन की आड़ में सैकड़ों कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया और कई कश्मीरियों के इनकाउंटर करके उनको शहीद कर दिया गया। आज के दिन हम पाकिस्तानी फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। आसिम मुनीर भाई, आपने जो भारत को करारा जवाब दिया था, उसकी गवाही पूरी दुनिया ने दी। आज 1 साल हो गया है, लेकिन भारतीय गोदी मीडिया आज भी गिरे हुए राफेल और तबाह हेडक्वार्टर्स को याद करके रो रहा है। नाज़रीन, मुल्तान के नौजवानों ने मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। इसी रैली के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं अरीक गुल की। मार्का हक में पाक फौज की फतह के जश्न और इजहार यकजहती के लिए मुल्तान सिटी की यूथ कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने रैली निकाली। रैली MDA चौक से कचहरी चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। उनका का कहना था कि दिफा मजबूत हाथों में है और नाकाबिले तस्खीर है। इसका सबूत मार्का हक भी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अफवाज और क़यादत की मस्बत पॉलिसियों की तारीफ आलमी सतह पर भी की जा रही है। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया है। ये पाक फौज की और सियासतदानों के मिलकर ये जो है ना यकजहती थे और पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर रहा है। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया, इस पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं और पाक फौज हमेशा जिंदाबाद। शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। पाक फौज मार्का हक में कामयाब हुई और भारत को शिकस्त हुई, जिसका जश्न मुल्क भर में अवाम रैलियों, सेमिनार्स और मुख्तलिफ तरीके से मना रही है। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और अब खबर है मकबूजा जम्मू कश्मीर से, जहां भारतीय इंतजामिया ने कश्मीरियों के घरों और ज़मीनों पर कब्जे का सिलसिला जारी रखते हुए श्रीनगर में 2 अफराद की करोड़ों रुपए की गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय पुलिस ने श्रीनगर के इलाके नूरबाग के रिहायशियों शकील अहमद गिनाई और फारूक अहमद मीर के 2 मंजिला रिहायशी घर जब्त कर लिए। मोदी हुकूमत ने अगस्त 2019 में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद कश्मीरियों को घरों, ज़मीनों और दीगर अमलाक से महरूम करने का सिलसिला तेज कर दिया है, जिसका वाहिद मकसद उन्हें माशी तौर पर मफलूकुल हाल बनाना और जब्त शुदा जायदादें गैर कश्मीरी भारतीय हिंदुओं को देकर इलाके में आबादी के तनासुब के मजमूम एजेंडे को आगे बढ़ाना है। भारतीय पुलिस के काउंटर
इंटेलिजेंस कश्मीर विंग ने पैरामिलिट्री एहलकारों के हमरा आज सेंट्रल जेल श्रीनगर पर छापा मारा और बैरकों की तलाशी के दौरान कई डिजिटल आलात जब्त कर लिए। भारत ने हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों समेत हजारों कश्मीरियों को झूठे मुकदमात में जेलों में बंद कर रखा है, जिन्हें डराने धमकाने के लिए अक्सर इस तरह के छापे मारे जाते हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में तलाशी की कार्रवाइयों और छापों के दौरान बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों की बिलाजवाज गिरफ्तारी और खवातीन बच्चों समेत लोगों को हिरासा किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मजलूम कश्मीरी अवाम के खिलाफ वहशियाना जंगी जराइम पर भारत को जवाबदेह ठहराए। ब्राजील वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशें रंग ला रही हैं और उनकी कोशिशों से पंजाब 10 लाख जानवर बरामद करेगा। गोश्त की बरामद के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों के साथ मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसले किए गए और तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने देही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा 2 गुना करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि माजी में लाइफ स्टॉक सेक्टर को नज़रअंदाज किया जाना इंतहाई अफसोसनाक है। लाइफ स्टॉक फार्म्स माशी खुद इन्हिसारी का जरिया बनते हैं। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि चीन की ग्लोबल मीट कंपनी पंजाब में पामको के इश्तराकी कार से बॉयलर यूनिट नस्ब करेगी, जिसके जरिए बड़े पैमाने पर बॉइल्ड मीट बरामद करने के लिए तैयार किया जाएगा। मीट कंपनियां बरामदात के लिए तैयार 3 लाख मवेशियों का गोश्त इंपोर्ट करेंगी। इजलास को यह भी बताया गया कि पंजाब की हर तहसील में बेहतरीन वेटनरी अस्पताल कायम किए जाएंगे और हर तहसील में 4 मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरियां भी फाल होंगी। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में पहली बार लाइफ स्टॉक फार्मिंग सेक्टर की मैकेनाइजेशन की जाएगी। हुकूमत लाइफ स्टॉक मशीनरी के लिए 60% तक सब्सिडी देगी। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि जनूबी पंजाब के 12 अजला में बेवा और मुतलका खवातीन को 9,255 मवेशी मुफ्त दिए गए हैं। बरामदी हदफ को पूरा करने के लिए 20 लाख मवेशियों को टैग किया जाए। पाकिस्तान आईटी के मैदान में तेजी से तरक्की कर रहा है और ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में नुमाया पेशरफ्त हासिल करते हुए 193 मुल्कों की दर्जाबंदी में 16वें नंबर पर आ गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद वसीर। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान साल 2024 के ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में यूरोपीय यूनियन, मशरक़ वस्ता के ममालिक और इंडेक्स में शामिल हर अफ्रीकी मुल्क से आगे निकल चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चीन, वियतनाम, कोलंबिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और बरतानिया जैसे ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया है। वफाकी वजीर शिजा फातिमा ख्वाजा के मुताबिक पाकिस्तान का टैलेंट स्कोर 100 में से 80 है, जबकि इसी पैमाने पर पाकिस्तान आलमी सतह पर 8वें नंबर पर आता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान औसतन तकरीबन 20% सालाना शरह सूद से तरक्की कर रहा है, जो मुल्क के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की सलाहियत और मजबूती का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान की ये पेशरफ्त आलमी IT मार्केट में इसके बढ़ते हुए किरदार की आकाश है। माहिरीन के मुताबिक यही रुझान बरकरार रहा तो पाकिस्तान जल्द टॉप IT एक्सपोर्टिंग ममालिक में शामिल हो सकता है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन ने अक़वाम मुत्तहिदा कमेटी बराए आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के चेयरमैन से मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तान और आलमी इदारे के दरमियान मजबूत और पायदार ग़िज़ाई निज़ाम के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि ग़िज़ाई निज़ाम की बेहतरी के लिए आलमी सतह पर कसीरुल-जहती ताउन नागुज़ीर है। राना तनवीर हुसैन ने ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान में डिजिटल टूल्स और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मुलाकात में इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि पाकिस्तान और CFS मिलकर मुस्तक़बिल में ग़िज़ाई बहरानों से निपटने के लिए ताउन को मज़ीद वुसअत देंगे। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मसूद अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हमारा मकसद है। अब पंजाब की तरह सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी कोई तरक्की से नहीं रोक सकता। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद अपनी रिपोर्ट में। लाहौर के इलाके सब्जादार के सरकारी स्कूल में पाकिस्तान की पहली फीफा अरीना पिच का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मसूद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का होना बड़ी कामयाबी है। अब पाकिस्तान दुनिया के साथ बराबरी की सतह पर बात करता है। उन्होंने कहा कि अब हर आने वाला दिन पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इज्जत में इजाफे का दिन होगा। इस्लामाबाद टॉक्स दुनिया की जुबान पर हैं, तो ये वो मौका है जिस पर हम टेक ऑफ कर रहे हैं। आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जो दुनिया से कशकोल लेकर भीख नहीं मांग रहा, बराबरी की बुनियाद पर कारोबार की बात कर रहा है।
साथ मिलकर चलने की बात कर रहा है। रुकन कौमी असम्बली हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने कहा कि पंजाब भर में तरक्याती कामों और नौजवानों को रोजगार के मौकों की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का विजन लाखों हमारे बच्चों और बच्चियों के लिए जॉब्स पैदा हो रही हैं। हमारे नेफ्टेक का इदारा काम कर रहा है जो कि तकरीबन 2 मिलियन के लगभग बच्चों को टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान में फीफा अरीना पिच बनने से फुटबॉल के मैदान में पाकिस्तान नुमाया मुकाम हासिल करेगा। तकरीब के इख्तिताम पर राना मशहूद अहमद खान ने पाकिस्तान की पहली फीफा अरीना पिच का संग बुनियाद रखा और कहा कि ये मनसूबा 2 माह में मुकम्मल होगा, जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सरमायाकार आलमी मार्केट और पाकिस्तान के दरमियान एक मजबूत पुल की हैसियत रखते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने लंदन में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से अपने एहसास में दिए गए इस्तकबालिया से खिताब में किया। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने बरतानिया में मुकीम बैनुल अक़वामी कारोबारी शख्सियात और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें की, जिसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और माशी इस्तेहकाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान कारोबार में आसानी को यकीनी बनाने के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सरमायाकारों के लिए पॉलिसीज़ को सहल और शफाफ बनाया गया है। वफाकी वज़ीर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मुल्क की मईशत का कीमती असासा करार देते हुए कहा कि उनका पाकिस्तान की माशी तरक्की में किरदार अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका है। इस्तकबालिये में शरीक पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ने पाकिस्तान की मौजूदा माशी समत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के अज़्म को दोहराया। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, तहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पठवार में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत शहीद बेनज़ीराबाद 46, सिब्बी और मिट्टी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हम आ गए हैं, हम छा गए हैं, मैदानों में हम आग लगा देंगे। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पीएसएल का फाइनल देखने के लिए शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत मिल गई है। वज़ीर आज़म ने पीएसएल फाइनल में तमाशाइयों को इजाजत दे दी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फाइनल देखने के हवाले से फैसले पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाजत देने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म भी चाहते थे कि फैंस को इजाजत मिलनी चाहिए, ताहम किफ़ायतशारी इक़दामात के बायस ईंधन के इस्तेमाल को कम से कम करने के लिए मैचेस बगैर शायकीन के कराए गए। मोहसिन नकवी ने कहा कि फ्रेंचाइज ऑनर्स की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने पीएसएल फाइनल में फैंस को स्टेडियम आने की इजाजत दे दी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दरखास्त पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पीएसएल 11 के फाइनल मैच में शायकीन के दाखिले की इजाज़त दे दी है। जिंदा दिलाने लाहौर के क्रिकेट शायकीन का कहना है कि मैच को यादगार बनाएंगे और फाइनल मैच हाउसफुल होगा। बहुत अच्छा फैसला किया गवर्नमेंट ने। पहले स्टेडियम बंद था तो अब माशाल्लाह से खुल गया, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि फ्रेंड्स के साथ जाके एंजॉय करेंगे। क्रिकेट खेलने का भी शौक है, क्रिकेट देखने का भी शौक है। इंशाल्लाह टिकट लेंगे, गुज़ाफ़ी में मैच है फाइनल, इंशाल्लाह देखेंगे। शायकीन को इजाज़त दे दी है तो ये बड़ी खुशाइन बात है, तो हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से अपनी फैमिली के साथ भी जाएंगे। इस तरह पता आपको हो रही है, हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हाउसफुल करें। गवर्नमेंट का अच्छा फैसला था पीएसएल के मैच के मुतालिक। लाहौरी तो वैसे ही इस चीज़ में आगे होते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है इस दफ़ा दोबारा ग्राउंड भरेंगे और बहाली आएगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 37वें मैच में कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से हरा दिया। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। लाहौर में खेले गए मैच में कराची किंग्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ग्लैडिएटर्स की जानिब से शमाइल हुसैन और ख्वाजा नाफे ने इनिंग्स का आगाज किया, तो दोनों ओपनर्स बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। रायली रूसो और सऊद शकील ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। रायली रूसो ने 54 गेंदों पर 90 रन की इनिंग्स खेली। सऊद शकील 57 रन बनाकर आउट हुए।
दिनेश चंदीमल 30 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कराची किंग्स की जानिब से हसन अली, रिजवान अल्लाह और अब्बास अफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की। कराची किंग्स ने 196 रन का हदफ 18.3 ओवर्स में बासानी 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान डेविड वार्नर 48 गेंदों पर 89 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। उनकी इनिंग्स 4 छक्कों और 10 चौकों पर मुश्तमिल थी। डीजा हेनरिक्स ने 87 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के और 8 चौके शामिल थे। पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 200 रन का हदफ दिया है। जवाब में कलंदर्स की बैटिंग जारी है। लाहौर में मेजबान कलंदर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पेशावर ज़ल्मी ने 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाए। 36 के मजमूई स्कोर पर जेम्स विंस और कौशल मेंडिस पवेलियन लौट गए। तीसरी विकेट की शराकत में कप्तान बाबर आजम और माइकल ब्रेसवेल ने 94 रन की शराकत कायम की। बाबर आजम 45 गेंदों पर 59 रन बनाकर आउट हुए। माइकल ब्रेसवेल ने 83 रन स्कोर किए। 45 गेंदों पर मुश्तमिल उनकी इनिंग्स में 6 छक्के और 8 चौके शामिल थे। इफ्तिखार अहमद 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कलंदर्स की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। पीएसएल के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और स्पोर्ट्स न्यूज के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज टीम के हमरा दीजिए इजाजत। पीटीवी न्यूज पर यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमारे साथ रहिएगा।